Hello student, welcome to the new session of this class 9th physics. Class 9th physics. Student, in the previous session we have learned about the scalar quantities, vector quantities, then speed, distance, displacement. Now in this video we will learn about velocity. If you see the formula and the SI unit of speed and velocity, you will find that both are having the same SI unit, that is meter per second. Then what is the difference between speed and velocity? So let's discuss this. So see this picture. Student, in this picture you will see that a car is moving towards a particular place in a fixed direction. It means that if a car is moving, it has motion. Yes, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम कहते हैं मोशन है ना. तो यहाँ भी मोशन है, बट इट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना. यानी स्पीड और वेलोसिटी को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि स्पीड और वेलोसिटी नियर अबाउट एक जैसी ही क्वांटिटी है, बट स्पीड डज नॉट हैव डायरेक्शन बट वेलोसिटी हैज़ इट. देयरफॉर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी and velocity is vector quantity. So you can say that a speed with a specific direction is called velocity. यानी वेलोसिटी कुछ ना होके स्पीड ही है, लेकिन जब उसके साथ कोई एक डायरेक्शन आ जाए तो हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी हो गई. तो जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्केलर विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी की बात करेंगे तो that is with direction, vector quantity. In this chapter we will take velocity only. So velocity is nothing but displacement upon time interval or time taken. This is the formula of velocity. Now the next question arises, what is average velocity? It is also a displacement upon time taken. Now student, let's see the difference between speed and velocity. If it's visible to you, so you can see that, you can read this, otherwise I am reading it for you. The first one is speed. The formula of speed is distance upon time or time interval. Speed is nothing but a distance upon time interval, whereas velocity is displacement upon time interval. Second point is direction. Speed is not associated with the direction, or you can say direction is not there in the speed. Speed में direction नहीं होती. वहीं velocity is associated with direction, that is the velocity has direction. Third point, speed, as it does not have the direction, it means it's a scalar quantity. That's why the third point is speed is a scalar quantity, and whereas velocity is vector quantity. So this is the third difference, that is speed is scalar, velocity is vector. Fourth point is speed is always positive. Speed, whenever you calculate the speed, it always positive, but velocity is either positive or negative. When it is in the direction of the motion, that time it's positive, but if it is in the opposite direction, so that time it's negative. Next is speed, its value cannot be zero for moving body. यानी जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज इफ इट इज़ मूविंग इट मस्ट हैव कवर्ड some distance, so that's why it never be zero. But the velocity, its value is zero if
वैल्यू ज़ीरो हो सकती है वेलोसिटी की कब? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम। ओके, जब भी अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आए तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर उसका सेम है, सो इट मीन्स दैट its velocity is zero. So velocity can be zero, speed cannot be zero. So that is the difference between speed and velocity. So student, I hope you understood what is speed, what is velocity. Now it's time to take, yes, numerical. Okay, so let's take one or two numerical based on the speed and velocity. Then we will move forward. Okay. So let's start. Rita takes 20 minutes to cover a distance of 3.2 kilometers on a bicycle. Calculate her velocity in units of kilometers per minute and meter per minute. So student, this is the numerical we have on the screen, that is Rita takes 20 minutes to cover a distance. यानी एक डिस्टेंस दिया है 3.2 किलोमीटर्स का. रीटा वो डिस्टेंस कितने मिनट में कवर करती है? दैट इज 20 मिनट्स में. रीटा टेक्स 20 minutes to cover that distance, that is 3.2 kilometers using bicycle. Now calculate her velocity. अब velocity calculate करना है, but the velocity जिस वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. बट यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है कैलकुलेट हर वेलोसिटी इन यूनिट ऑफ किलोमीटर पर मिनट एंड मीटर पर मिनट. सो किलोमीटर पर मिनट में तो इजीली निकल जाएगा बिकॉज ऑलरेडी द डिस्टेंस इज गिवन इन किलोमीटर एंड टाइम इज गिवन इन मिनट्स. सो फर्स्ट किलोमीटर पर मिनट निकाल लेते हैं, फिर हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर पर मिनट भी आ जाएगा. सो लेट्स सॉल्व दिस. ओके, so student, here is the answer or the solution of this numerical. See, there is a fixed pattern to write the numerical, but here I am taking only the formula and the calculation because it's too small. Okay, when I'll take it on the board, that time I'll tell you how to write a proper numerical. numerical को कैसे लिखा जाता है, what are the different steps, है ना, वो सब हम इसके बाद देखेंगे. अब देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, बिकॉज क्वेश्चन वाज फाइंड आउट द वेलोसिटी. सो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन 3.2 किलोमीटर. ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? 3.2 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 3.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम. एंड व्हाट इज द टाइम गिवन हियर? रीता टेक्स 20 मिनट्स, सो 20 इज द टाइम. सो 3.2 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट्स. सो व्हेन यू विल फाइंड आउट द आंसर यू विल गेट 0.16 किलोमीटर पर मिनट. नाउ जैसे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर जो पूछा गया था वो ये था क्वेश्चन कि कैलकुलेट हर वेलोसिटी इन यूनिट ऑफ किलोमीटर पर मिनट. तो देखो ये किलोमीटर पर मिनट यूनिट किलोमीटर पर मिनट में हमें मिल चुका है. मीन्स वी हैव गॉट द फर्स्ट आंसर, दैट इज किलोमीटर पर मिनट यूनिट में, है ना, 0.16 किलोमीटर पर मिनट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन और था कि फाइंड आउट द वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट. मीटर पर मिनट में चाहिए था. तो मीटर पर मिनट के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो 0.16 है इसमें हमें इसको जो किलोमीटर है उस किलोमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर में. तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? यस, अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1000. सो दैट्स वाई 0.16 इंटू 1000.
1000 क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसीलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया. सो नाउ इट इज़, वो किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे 1000 मीटर. सो 0.16 इंटू 1000 मीटर अपॉन मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में ही चाहिए था. सो इट बिकम्स 160 मिनट पर मिनट, 160 मीटर पर मिनट, यानी किलोमीटर पर मिनट में क्या था 0.16, और अभी मीटर में क्या हो गया, दैट इज़ 160 मीटर पर मिनट. So this is the answer of that numerical. Okay, so students, when you solve the numerical, the first thing is you must read the numerical or the question properly. क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, एंड उसके बगैर हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, है ना. और कई बार तो हमें आंसर भी आते रहता है, लेकिन हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड ही नहीं किया तो हमें समझ में नहीं आएगा. ओके, सो रीड द न्यूमेरिकल प्रॉपरली. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल दे आर. जनरली एग्जामिनेशन में इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं आते, बट ये न्यूमेरिकल आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को स्किप किया तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. सो दैट्स वाई आई सेड प्लीज़ गो थ्रू इट. ओके, नाउ let's take the second numerical. So student, here is the second numerical on your screen. A car travels 4 kilometers in 3 minutes. Find the speed of a car in centimeter per second. S raised to the power minus 1 indicates that it's per second. So we know the formula of speed, and it's nothing but speed is distance upon time. So how much distance it covers? It covers only how much distance? It covers 4 kilometer distance in how much time? 3 minutes. So just put the values, 4 kilometer upon 3 minutes. But now again the question asked in centimeter per second. That's why you need to convert kilometer into meter first, then after meter you need to convert it into, yes, into centimeter. Okay, so here first step, speed is equals to 4 kilometer upon 3 minute, ये दिया है. Now convert 4 kilometer into meter, 4 into 1000 मीटर. तो पहले अब मीटर में कन्वर्ट हो गया, एंड टाइम दैट इज 3 मिनट को पहले हमें सेकेंड में, मिनट को पहले हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 3 इंटू 60, 4 इंटू 1000 क्यों, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में करना है, और 3 इंटू 60 क्यों, क्योंकि मिनट को सेकेंड में करना है. 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड 1000 बाई 60. सो नाउ अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में भी करना है. सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. दैट्स वाई 4 इंटू 1000 इंटू 100. ओके, 4 इंटू 1000 तो पहले था ही है, बट दैट इज इन मीटर. तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए अगेन मल्टीप्लाई विद 100. सो 4 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 60, क्योंकि सिर्फ सेकेंड में करना है. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर 2.2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड. देखो जो डिवाइड बाय सेकेंड होता है, जब हम अगर उसको न्यूमरेटर पे लेके जाए, सो इट बिकम्स -1. ओके, सेकेंड raised to s raised to the power -1. So that can be written as centimeter per second. So this is the answer, that 2.2 into 10⁻³ centimeter per second is the speed of that car. Okay, now so you must understood this, how we have found out. In the previous numerical we use the formula of velocity. In this numerical we use the formula of speed. So now let's move forward. After differentiating the speed and velocity, now let's start the new topic of this chapter, that is what? Uniform and non-uniform motion. What is uniform motion, what is non-uniform motion, that we have to see. So uniform motion and non-uniform motion. Student, these two motions are very important
because with this we can find out how the object moves. When we say that it's a uniform motion, there is a relation of the movement of an object with the time. Yes, it means that in what interval of time, how much distance that object covers, that define whether it has a uniform motion or non-uniform motion. So the definition of uniform motion is uniform motion. Okay, a motion of a body is said to be uniform if the body covers equal distances in equal interval of time, howsoever small the time interval may be. It means that जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है, अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसने 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर्स. नाउ नेक्स्ट 5 मिनट्स में अगेन 10 किलोमीटर्स ओनली, देन अगेन द सेम 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 10 मिनट्स में 20 किलोमीटर. तो जब हम उसकी स्पीड निकालेंगे एट एवरी इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल में भी सेम वही 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2, सेकेंड में 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 2, थर्ड इसमें 20 डिवाइडेड बाय 10 that is 2. So it means that the speed is constant and the object is covering equal distance in equal interval of time. अब यहाँ पे हमने interval of time क्या लिया है 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स में जितना डिस्टेंस उसने फर्स्ट इंटरवल में कवर किया था उतना ही सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, सभी इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना. तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ओके, मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if the body covers equal distances in equal interval of time. अब इसके आगे देखो लिखा है howsoever small the time interval may be, यानी टाइम कितना भी छोटा हो, है ना. जैसे देखो अब हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, अराउंड इटसेल्फ, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, काफ़ी कम डिस्टेंस हम कवर करती है ना. सो व्हाटसोएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल कितना छोटा भी हो तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ इट, है ना. एग्जाम्पल देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के क्या है. सो द examples of this uniform motion is motion of a hands of a clock. हैंड्स का मतलब क्या होता है, यस, घड़ी के कांटे. अगर आप देखते होंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं. ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि 1 सेकेंड में वो कुछ ज़्यादा डिग्री कवर करें. हैंड्स ऑफ द क्लॉक ये जो होते हैं ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं. अगर देखो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो कई बार 1 आवर कंप्लीट होने के बाद भी शायद घड़ी में 1 आवर कंप्लीट ना दिखाता, है ना, अगर कम डिस्टेंस कवर करते हैं. या फिर अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो पता चला 1 आवर कंप्लीट होने का ही है और वहाँ पे 1 आवर 20 मिनट्स हो गए, है ना. इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकते थे, बट ऐसा नहीं होता है ना. क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं दे कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो यू कैन से दैट दे हैव यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. एज आई सेड अर्लियर, जो अर्थ होती है ये अपने अराउंड 24 आवर्स में एक कंप्लीट चक्कर लगाती है ना. तो ये जो रोटेशन है बराबर उसका फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. ओके, सो इट ऑल्सो हैज़ द यूनिफॉर्म मोशन. Now, non-uniform motion. Non-uniform motion of a body is said to be non-uniform if body covers unequal distance in equal interval of time. अब यहाँ पर देखो जो डेफिनेशन है मैंने दिया है unequal distance in equal interval of time. You can modify the definition and you can say that when the body covers equal distance in
अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी या तो डिस्टेंस या टाइम दोनों में से कोई भी अनइक्वल होता है तो हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कब? जैसे देखो एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट इसमें देखा था यूनिफॉर्म में कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर, देन 5 मिनट में 10 किलोमीटर, यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा था बॉडी, है ना। बट अगर वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कभी 5 मिनट में 10 किलोमीटर, कभी 5 मिनट में 12, कभी 5 मिनट में 15, यानी टाइम इंटरवल तो फिक्स है, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस डिफरेंट है। तो ऐसे वक्त हम क्या कहेंगे? इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब देखो हम डिस्टेंस को भी ले सकते हैं कि फर्स्ट 5 किलोमीटर 3 मिनट में कवर किया, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 7 मिनट में कवर किया, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किया। तो देखो यहाँ पे अब डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल अलग है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। वेदर द डिस्टेंस इज अनइक्वल और द टाइम इज अनइक्वल, दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें बहुत जगह देखने मिलेगा, है ना, बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल कभी हम कुछ खेल रहे हैं तब भी, है ना, जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल दैट इज जो अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपने देखा होगा कभी कोई बच्चा एकदम तेज़ दौड़ते आता है बॉल की तरफ, कभी कोई बच्चा एकदम स्लो दौड़ते आता है, कभी कोई जिगजैग में दौड़ रहा है, कोई लेफ्ट कोई राइट, यानी कोई भी जो प्लेयर है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कई बार अगर ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक में कई बार अगर नो ट्रैफिक है, कोई दूसरे व्हीकल्स नहीं है, तो गाड़ी स्पीड से चलती है, फिर पता चला बीच में कुछ गड्ढे आ गए, ब्रेकर आ गया, कुछ हो गया, तो गाड़ी स्लो हो जाती है, फिर फास्ट, फिर कम, फिर ज़्यादा, है ना। इस तरीके का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपके ड्राइविंग का भी हो सकता है। कई बार हम गाड़ी सब स्टार्ट करते हैं तो स्लो होती है, फिर थोड़ी देर बाद फास्ट चलती है, फिर स्लो हो जाती है, तो दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time. Okay, so this is non-uniform motion. So student, I think you have understood what is velocity, what is uniform motion, non-uniform motion and its graph. I hope you have enjoyed today's session. We will meet you in the next one. Thank you.